liver, and approximately 400 grams will be stored in muscles. Matlab, in total it is 500 grams. Approximately. Why I am telling approximately? It varies based on your body weight. If your body weight is more, that means you have more muscle. You can store more glycogen. If your body weight is less, your muscle weight will be less, so it can store less glycogen, right? So each gram of carbohydrate can produce 4 calories of energy. Fine. So that means we have 500 grams. If we have 500 grams of carbohydrate, we can store approximately 500 into 4, that is 2000 calories in the form of glycogen. So this much energy would be sufficient for you to do which activity? Which activity you can do with 2000 calories of energy? How many hours you can work with this energy? It depends upon your intensity. It depends upon what kind of activity you are doing. For swimming, 1 hour swimming, how much energy is spent? Any idea? If you walk for 1 hour, how much energy would be used? If you swim, how much energy is used? If you do swimming, more energy would be used, right? Approximately 600 calories, I think, for swimming, right? Yes. If you walk with high intensity, around 200 calories would be spent, right? So, but you have 2000 calories in the form of glycogen, right? You may not be able to do marathon, but you would be able to do quite good run, right, with this energy. Yes. Next form in which next form in which the fuel is stored in our body is triglycerides. Triglyceride is a type of fat which is stored in adipose tissue. ये adipose tissue कहाँ होता है? You know where the liver is, where the muscle is, but where this adipose tissue is present in our body? In your body, under the skin, there is a thin fatty layer, subcutaneous fatty layer. There, adipose tissue is present. Just beneath the skin, adipose tissue would be present. Okay. And if you eat more food, that food will be converted to fat and it will be stored in your body. And there is no limit for this storage. The more you eat, more adipose tissue will be developed and more fat will be stored in your body. Okay. So an average person, individual who weighs around 75 kg can store how much fat? How much fat he can store? Approximately 10 kg fat. Okay. 10 kg fat. So each gram of fat produces how much calories? Each gram of fat produces how many calories? 9. So suppose अगर आपके बॉडी में 10 kg फैट है, तो how much energy stored है आपकी बॉडी में फैट के रूप में? If you have 10 kg fat, 10 kg means grams में convert करके देखो, 10,000 grams, right? 10,000 grams. This much fat is available. Each gram of fat can produce 9 calories. So you have 10,000, that means you can produce nearly 90,000 calories, right? So this much energy is available in your body in the form of fat. And एक बार सोचो कितना एक्टिविटी करने के लिए काफी है? How much activity you can do with this energy? You can do lot of activity continuously, right? उतना एनर्जी आपका बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है. सो जितना भी हो फ्यूल आपकी बॉडी में, अगर आपको एक्टिविटी करना है तो ये फ्यूल जो है पहले ये एटीपी के रूप में कन्वर्ट होना है, देन एटीपी विल बी यूज्ड फॉर एनर्जी. पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, पहले एटीपी के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन उससे आपको एनर्जी मिलेगा. अगर ये कन्वर्शन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है पिछले स्लाइड में?
Any doubt in the previous slide? Fine, fine. So this slide shows, how you will get, energy, how fuel is stored in your body. If you examine this slide, you can see whenever you eat food, you get carbohydrate, you get protein, you get fat, right? Whatever fat you get, that will be stored in two sides in your body. One is adipose tissue, and very little amount of fat can be stored in muscles also. Mainly fat store होता है adipose tissue में, very less quantity में muscles में भी रहता है. Okay? जो प्रोटीन आप खाते हैं वो मेनली यूज होता है ग्रोथ के लिए. Whatever protein you eat, that is mainly used for the growth. लेकिन थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है. Nearly 5% of energy production can come from the protein. Okay? And जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, ब्रेड, चावल, रोटी के रूप में, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज रिलीज हो जाता है और ये ग्लूकोज लिवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. जो ग्लूकोज बन जाता है फूड से, वो हमारा बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है. ओके? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए ग्लूकोज की आवश्यकता ज्यादा होती है. You need glucose when you are doing exercise. In that condition, glucose will be released from the glycogen and you can do your activity. Is it clear? If you are doing aerobic activity, mainly energy comes from fats. If you are doing anaerobic activity, mainly energy comes from carbohydrates. हमारा बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन प्रोटीन से बहुत कम मात्रा में होता है. जब फैट्स और ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम रहता है, उस समय में अमाइनो एसिड्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, यानी कि प्रोटीन से एनर्जी प्रोडक्शन होता है. एनी डाउट इन दिस स्लाइड? Clear? Yeah. Then we'll discuss about ATP. What is ATP? What is the full form of ATP? Try to remember this. It is very, very important. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. थोड़ा दिक्कत रहता है इसको रिमेम्बर करने के लिए, but try to do. Adenosine triphosphate. हमारा बॉडी में, फुल बॉडी में कितना ATP स्टोर होता है? जस्ट 50 ग्राम्स. हम पूरा बॉडी में 50 ग्राम्स ऑफ ATP को स्टोर कर सकते हैं, वो भी मसल्स में. ओके? ये जो 50 ग्राम ATP अवेलेबल है, वो 2 से 4 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बाद. अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जो 50 ग्राम की ATP है अवेलेबल है आपको बॉडी में, वो सिर्फ 2 या 4 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है. इज इट क्लियर? तो अगर मेरा एक्टिविटी 10 सेकेंड्स के लिए करना है या मेरे को एक्टिविटी 1 मिनट के लिए करना है, तो क्या करना पड़ता है? मेरा ATP खत्म हो गया है, आवश्यकता है हमारा बॉडी में. क्लियर? हमारा बॉडी में कितना ATP रहता है? 50 ग्राम्स. ये 2 से 4 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान. इज माई वॉइस इज नॉट क्लियर? क्या मेरा आवाज आ रहा है? फाइन. इज दिस स्लाइड इज क्लियर? 50 ग्राम ATP is available and it can be finished within 2 to 4 seconds when you are doing high intensity activity, right? So if you want to do high intensity activity for longer period, what you are supposed to do? You need to regenerate ATP. Your body has to regenerate ATP, right? So when the ATP, see, suppose you have this much ATP
You are doing activity. After some time, your ATP levels are reduced. So you can't continue your activity, right? So to maintain ATP levels, you need to resynthesize ATP levels. You need to maintain your ATP levels. So ATP resynthesis होने के लिए हमारा बॉडी में दो mechanisms available है. We have two mechanisms to reproduce or to regenerate ATP in our body. Okay, what are those mechanisms? Aerobic mechanism and anaerobic mechanism. Okay, we have two mechanisms in our body to reproduce ATP. One is aerobic mechanism, the other one is anaerobic mechanism. What do you mean by aerobic and anaerobic? इसका बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर एटीपी की रीसिंथेसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एरोबिक मैकेनिज्म. ATP is reproduced in the presence of oxygen. That mechanism would be considered as aerobic mechanism. Aerobic means in the presence of oxygen. अगर ATP की उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपम स्थिति में हुआ है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक मैकेनिज्म. इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन है तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक. ओके, तो आपको डाउट आया होगा ऑक्सीजन वैसे भी होता है ना हमारा बॉडी में, ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है, हम तो सांस लेते रहते हैं. सो वेयर दिस एब्सेंस इज कमिंग. सोचो आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए 12 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. ओके, 12 लीटर्स ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 10 लीटर प्रोवाइड किया है. वेयर इज द गैप? गैप कितना रहा? आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुआ है. हाई इंटेंसिटी में अब ब्रीथ बहुत जल्दी लेते ना, मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है. ओके, लेकिन उतना ऑक्सीजन बॉडी सप्लाई नहीं कर पाया, मतलब 2 लीटर की कमी है. दैट इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उस स्थिति में जब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा रहता है लेकिन उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है बॉडी, उस स्थिति में एटीपी हमारा बॉडी में कैसा बनता है? एनारोबिक मैकेनिज्म से बनता है. गॉट इट? इसका मतलब ये है. सो एटीपी रिप्रोडक्शन दो मैकेनिज्म्स के द्वारा हो सकता है. एक है एरोबिक मैकेनिज्म, दैट इज ATP production happens in the presence of oxygen. Second mechanism is anaerobic mechanism. That means ATP production occurs in the absence of oxygen. Clear? ये दो है mechanisms. अभी ये जो मैं बताने वाली हूँ वो है systems. हमारा बॉडी में ATP को रिप्रोड्यूस करने के लिए 3 systems, ये मशीनरी जैसा, ओके, 3 सिस्टम्स अवेलेबल है. वो है, एक है फास्फाजन सिस्टम, रिमेंबर नेम्स, फास्फाजन सिस्टम. सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड सिस्टम एंड थर्ड वन इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम. ओके, देयर आर 3 systems in our body to regenerate ATP. One is phosphagen system, second one is lactic acid system, and third one is aerobic energy system. Clear? इन तीनों में ये जो फर्स्ट दो है, फर्स्ट 2 systems can produce ATP even in the absence of oxygen. They can produce ATP in the absence of oxygen. So these two are called as anaerobic energy systems. These two are called as anaerobic energy systems. मैंने अभी बताया 3 सिस्टम्स है हमारा बॉडी में एटीपी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, राइट? एक है फास्फाजन सिस्टम, दूसरा है लैक्टिक एसिड सिस्टम, थर्ड वन इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम, राइट? इन तीनों में से ये जो फास्फाजन सिस्टम और लैक्टिक एसिड सिस्टम है वो
ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है। ओके, सो दीज टू सिस्टम्स आर कंसिडर्ड एज एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। मतलब ऑक्सीजन की अनुपम स्थिति में एटीपी को प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये दोनों एनारोबिक मैकेनिज्म में चलता है। So these two are called as anaerobic energy systems. Clear? लेकिन for last one, aerobic, name itself indicates ये सिस्टम चलाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूर है। ऑक्सीजन के बिना ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये सिस्टम ऑक्सीजन के बिना एटीपी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट? So this is called as aerobic energy system. Is it clear? क्या ये समझ में आ रहा है? फाइन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फास्फाजन सिस्टम के बारे में। फास्फाजन सिस्टम। सो किसी ने पूछा है एटीपी कैसा बनता है? जब हम काम करते हैं तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लिसन, एटीपी एडीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एटीपी में कितना फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है? हाउ मेनी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एटीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? 3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? मतलब इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है। ये क्या है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इसमें 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है, राइट? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक फॉस्फेट रिलीज हो गया, तो 3 फॉस्फेट की जगह पे सिर्फ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है अभी। सो अगर एडीपी और एक फॉस्फेट के साथ जुड़ा हो गया तो एडीपी से फिर से बनेगा एटीपी। एडीपी के साथ और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा? एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स राइज टू एटीपी। लेकिन ये फॉस्फेट कौन प्रोड्यूस करने वाला है? ये फॉस्फेट को कौन देने वाला है, प्रदान करने वाला है? वो है फॉस्फोक्रिएटिन। ओके, मेरा वॉइस कट हो रहा है क्या? फास्फोजन सिस्टम में क्या होता है, आपकी मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट नाम की एक मॉलिक्यूल रहता है। क्रिएटिन फॉस्फेट नाम की एक मॉलिक्यूल रहता है। ये क्या करता है? फॉस्फेट को डोनेट करता है। क्रिएटिन फॉस्फेट विल प्रोवाइड फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू एडीपी so that ADP will be converted to ATP. Clear? CP से क्रिएटिन फॉस्फेट से फॉस्फेट को लेगा और ADP ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? Is it clear? तो फास्फोजन सिस्टम एक एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो एटीपी को रीसिंथेसाइज कर सकती है। ओके, और दिस इज द बॉडीज फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड टू रिप्रोड्यूस एटीपी। दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। जब आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ता है, व्हेन यू नीड मैक्सिमम एनर्जी इमीडिएटली, यू विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस फास्फोजन सिस्टम। इसके लिए फ्यूल कौन सा होता है? फास्फोजन सिस्टम के लिए फ्यूल क्या है? फॉस्फोक्रिएटिन। फॉस्फोक्रिएटिन यहाँ का क्या कर रहे हैं? फॉस्फोक्रिएटिन इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट टू एडीपी टू प्रोड्यूस एटीपी। ओके, तो अभी आपको कुछ याद आया? बहुत कुछ लोग क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं, राइट? क्रिएटिन एक केमिकल कंपाउंड है जो अमाइनो एसिड से बनता है हमारा बॉडी में। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो अमाइनो एसिड्स है उससे हमारा बॉडी में क्रिएटिन बन जाता है।
वो क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में हमारा मसल्स में रहता है, ओके। लेकिन कुछ लोग क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लेने से सीपी की कंटेंट बढ़ जाता है मसल में, तो मैक्सिमम एटीपी वो प्रोड्यूस कर पाता है हाई इंटेंसिटी के दौरान, राइट। तो एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्यों ले रहा है? क्योंकि क्रिएटिन जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में मसल में स्टोर होगा। जब जरूरत पड़ता है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल को डोनेट करके एडीपी के लिए एटीपी को बनाएगा, और इस एटीपी को हम एक्सरसाइज के लिए या वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सिस्टम हमारा बॉडी में कब यूज होता है? कौन से इवेंट के दौरान ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? एनी आइडिया? कौन सा इवेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है? ये आकांक्षा इज आस्किंग, इज इट एडवाइजेबल टू टेक क्रिएटिन? सो दिस इज अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, ये न्यूट्रिशन मैम से पूछना पड़ता है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेने से स्प्रिंटर्स के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन बाकी एथलीट्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कौन लेना है, कब लेना है, वो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ पूछ के लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एनारोबिक, कहीं ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन. This system can produce ATP in the absence of oxygen, so it is called as anaerobic energy system. It is the fastest and simplest energy system. सिर्फ एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन में ADP ATP के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो it's very fast and simple. What is the fuel for this system? Creatine phosphate is used as fuel for this system, right? तो कौन से इवेंट्स के लिए ये यूजेबल है, मतलब यूज होता है ये सिस्टम? स्प्रिंटिंग इवेंट्स में, जंपिंग इवेंट्स में, थ्रोइंग इवेंट्स में, कोई भी एक्टिविटी आप मैक्सिमम इंटेंसिटी से करते हो, उस इवेंट के लिए ये एनर्जी सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओके। Yeah, basketball players, when you are jumping, when you are smashing, okay, so during those activities your body will be depending on this energy system. Suppose you take hockey player, when he's doing sprints in between, so he'll be depending on this energy system. So maximum जब 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 आपका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, तब ऑटोमेटिकली आपका बॉडी इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। So this is also showing how creatine phosphate. This is creatine phosphate. Creatine phosphate is donating its phosphate group to ADP, adenosine diphosphate, and producing ATP, adenosine triphosphate. So creatine phosphate, phosphate को donate करके सिर्फ creatine के रूप में convert हो रहा है. Is it clear? So ये एक reversible reaction होता है. Suppose if you are doing exercise, in your body ATP levels will be reducing. एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, आपका बॉडी में ATP की लेवल्स कम होना शुरू हो जाता है, ATP की लेवल कम हो जाता है. जब आपका ATP लेवल्स कम है, तब क्रिएटिन फॉस्फेट इस फॉस्फेट को डोनेट करेगा ADP को और बनाएगा ATP को, ओके. बट व्हेन यू आर इन रेस्ट, जब आप रेस्ट लेते हो, अगर एक्टिविटी को स्टॉप करके रेस्ट लेते हो, तो आपकी बॉडी में एटीपी की लेवल अच्छा होता है, एटीपी की लेवल्स मेंटेन होता है. इस स्थिति में एटीपी डोनेट करेगा फॉस्फेट ग्रुप को, ओके, क्रिएटिन को डोनेट करेगा और क्रिएटिन फॉस्फेट को फिर से रीसिंथेसाइज करेगा. So इसका मतलब है when you are in rest, ATP will donate its phosphate to creatine to reproduce creatine phosphate. So your storage will be maintained. So if you are in rest, creatine phosphate synthesis will take place. If you are doing exercise, ATP synthesis will take place with the help of creatine phosphate. It's a reversible reaction.
ये समझ में आया है या नहीं? Are you clear about this point? If you are doing activity, your body will try to synthesize ATP from ADP with the help of creatine phosphate. If you are taking rest, resting condition में आपका body में ATP के level वैसे भी अच्छा होता है, right? So ATP will be used to resynthesize creatine phosphate so that it will be stored. It's just like that. First को आपको salary मिल गया, तो you try to save some amount, right? 30th को salary खत्म हो गया, you will take the amount from your savings. Same way, when you are doing exercise, you need ATP. तो ATP को reproduce करने के लिए आप creatine phosphate को use कर देते हैं. Okay? जो मसल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट है उसको यूज करके उससे एटीपी को बनाने के लिए ट्राई करते हैं. व्हेन यू आर इन रेस्ट, आपका बॉडी में एटीपी लेवल्स अच्छा होता है, तो इस स्थिति में आप क्रिएटिन फॉस्फेट को स्टोर करने के लिए सोचते हैं. ओके, बॉडी. आपको समझ में नहीं आ रहा है रमनदीप? इज इट क्लियर नाउ? तो क्रिएटिन फॉस्फेट जल्दी खत्म हो जाता है. हमारा बॉडी में पूरा मिलके 120 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट होता है. 120 ग्राम्स. ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो सिर्फ 8 से 10 सेकेंड तक एटीपी को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है. ओके, सो वी हैव लिमिटेड स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कितना रहा? 500 ग्राम्स. फैट की स्टोरेज कितना रहा? 10 kg, 10,000 ग्राम्स. लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट की स्टोरेज कितना रहा हमारा बॉडी में? 120 ग्राम्स, वो भी कुल मिलकर. ओके, सो ये थोड़ा सीमित है, स्टोरेज लिमिट बहुत सीमित है क्रिएटिन फॉस्फेट की. तो इससे हम सिर्फ 8 से 10 सेकेंड तक एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं. तो 10 सेकेंड के बाद क्या होगा? हमारा बॉडी में सीपी की लेवल कम हो जाएगा. 10 सेकेंड हाई इंटेंसिटी करने के बाद, यानी कि 100 मीटर स्प्रिंट करने के बाद आपकी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट की लेवल कम हो जाता है. तो इसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन भी स्लो हो जाता है इससे. ओके, तो क्रिएटिन फॉस्फेट को फिर से रीसिंथेसाइज करने के लिए क्या तरीका है? The best way to resynthesize creatine phosphate is to take rest. रेस्ट लेने से बॉडी में ऑटोमेटिकली क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है. इसलिए स्प्रिंटर्स जब स्प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, एक स्प्रिंट के बाद 2 से 3 सेकेंड रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट स्प्रिंट में चला जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्प्रिंट के लिए जब वो जाते हैं तो उनकी बॉडी में मोस्टली क्रिएटिन फॉस्फेट की लेवल कम हो जाता है. उसको रीस्टोर करने के लिए 3 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट रेस्ट ले लेता है, राइट? सो 1 मिनट रेस्ट लेने से नियरली 75% क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है हमारा बॉडी में. 3 से 5 मिनट में 100% क्रिएटिन फॉस्फेट रीसिंथेसाइज हो जाता है. सो विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट मोमेंट. Clear? Any doubt? Oh, somebody is asking if you are taking creatine orally, then will also same process will apply. Yes. See, if you are taking orally, you are making sure your muscle will have a good amount of creatine phosphate. लेकिन इसका ये जो लिमिट है, स्टोरेज लिमिट, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा बॉडी. सपोज आप फूड के द्वारा ट्राई किया तो शायद 110 ग्राम क्रिएटिन स्टोर्ड है आपकी बॉडी में. सप्लीमेंट लेने के बाद ये 120 ग्राम या 130 ग्राम हो सकता है. इससे ज्यादा आप नहीं कर पाते हैं. ओके, तो टू मच सप्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स. तो बॉडी का भी एक कैपेसिटी होता है क्रिएटिन को स्टोर करने के लिए. At the end of the day, where this creatine is, 1 second. Hello, sir, I'm in class, sir. Class चल रहा है मेरा. Okay, मैं थोड़ी देर के बाद कर लूँ.
सर मैं आफ्टरनून शाम तक दे देती हूँ सर, ठीक है। नहीं सर कोई नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, 20 मिनट्स के बाद कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। आई विल कॉल यू आफ्टर 20 मिनट्स। क्लास चलो, कैन यू हियर मी? Class is going on, Khansa. I'm getting calls in between. I'll call you. I'll later. Okay. Yeah. You want me to repeat this slide? Okay. Fine. So can we move to next slide? या हाई वाटर इनटेक इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, वो दूसरी सेशन में हम कवर कर सकते हैं. ओके, वी हैव टू कवर 2 more energy systems and we are running short of time. See, creatine supplementation will have its own side effects. Water retention will be more in the body, so उसकी वजह से कभी कभी weight ज्यादा हो सकता है, body weight. So all these we have to look into. Fine. सो फर्स्ट एनर्जी सिस्टम इज फास्ट वर्जन सिस्टम. इसके लिए फ्यूल होता है क्रिएटिन फास्फेट, और ये वेरी फास्टेस्ट एनर्जी सिस्टम है. So what are the advantages of this system? It is very rapid. You can produce energy quickly by using this energy system, and it can be used during powerful movements. When you are doing high intensity movement, high intensity activities, you can depend on this system. And तीसरा एडवांटेज ये है, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. इस सिस्टम के द्वारा एटीपी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है. बिना ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की लेवल कम होता है आपको बॉडी में, उस टाइम में भी आप इस सिस्टम को यूज करके एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं. ओके, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? इसका लिमिटेशंस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है इस सिस्टम का? एक फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, इसका स्टोरेज कम है, सीपी का स्टोरेज कम है बॉडी में, तो ये ज्यादा देर तक एटीपी को रिप्रोड्यूस करने में मदद नहीं कर सकता है. ओके, सो 8 से 10 सेकेंड तक हम इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं. ओके, अगर टाइम इससे ज्यादा हो गया तो हम दूसरी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. इज इट क्लियर? और एक सीपी से सिर्फ एक एटीपी बन जाता है. एक सीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है. ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू दिस सिस्टम इज इन 1:1 रेशियो. एक सीपी यूज हो गया और एक एटीपी बन गया. आकांक्षा, सिर्फ आपके लिए स्लाइड विजिबल नहीं हो रहा है, होगा सबके लिए विजिबल है, राइट? Is the slide is clear, visible now? Okay. Just a second. So what are the limitations of this energy system? Is it clear now? या लिमिटेशंस क्या होता है? ये सिर्फ 8 से 10 सेकंड तक एटीपी को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है. अगर आपका एक्टिविटी इससे भी लंबा है तो आप दूसरी सिस्टम के ऊपर निर्भरित करना पड़ता है. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, इसमें एक सीपी मॉलिक्यूल यूज होने से सिर्फ एक ही एटीपी बनता है. सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज इन 1:1 रेशियो. And any further ATP production must come from other energy system. अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है तो अब दूसरी एनर्जी सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ता है. क्लियर? So next energy system is lactic acid energy system. It is also called as
anaerobic glycolytic system. Okay. See, fast fusion system is also called as ATP-CP system because CP is used as fuel in this system, and it is also called as a lactic acid system. There is no production of lactic acid in this system, so it is called as alactic, no lactic, okay, a lactic acid system. These are the other names of fast fusion system. One is ATP-CP system, second one is a lactic acid system. All are same, fast fusion system, a lactic acid system, and ATP-CP system. I'm quickly repeating about fast fusion system, okay? Just have patience. See, fast fusion system is the anaerobic energy system. It can produce ATP without oxygen. It is the fastest and simplest energy system to produce ATP. For this energy system, creatine phosphate is used as fuel. Okay, creatine phosphate is used to produce ATP. It is used during high intensity activities. What are the advantages? It is fast. It can be used during high intensity activities, and it does not require oxygen. This system does not require oxygen. What are the disadvantages? Time duration is very less. It can support us only for 8 to 10 seconds. And ATP production is also less. It can produce ATP only in 1:1 ratio. Any further ATP production for any further requirement, we have to depend on other energy system. So second energy system is lactic acid system. What is the other name of lactic acid system? Anaerobic glycolytic system. Anaerobic glycolysis we call it otherwise, okay? Anaerobic glycolytic system. Which type of system is this? Aerobic or anaerobic? Anybody? Is this is aerobic system or anaerobic system? Anaerobic system means this system also does not require oxygen, right? It produces ATP anaerobically. What is the fuel for this system? Glucose or glycogen are used as fuels for this system. This system can use glucose or glycogen as fuel. So ATP is produced from glucose or glycogen in this system. Okay. So it is also called as glycolytic system, right? Means glucose will break down into pyruvate and then to lactate. That's why we are calling it as glycolytic system. Okay. Glucose will have 6 carbons in it. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Glucose will have 6 carbons in it. By a process called glycolysis, it will break into 2 molecules of pyruvate or 2 molecules of lactate. This process is called as glycolysis. Glycolysis can occur in 2 conditions. One is aerobic condition and the other one is anaerobic condition. अगर glycolysis aerobic स्थिति में होता है तो प्रोड्यूस होता है 2 pyruvate molecules. अगर glycolysis anaerobic स्थिति में होता है तो प्रोड्यूस होता है 2 lactate molecules. ठीक है? So glycolysis means breakdown of glucose. जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है तो 2 पायरुवेट या 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है. अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट बन जाता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है. So now we are talking about anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis इसमें क्या होता है? ग्लूकोज या ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है. इस स्थिति में 2 या 3 एटीपी बन जाता है. जब ये प्रोसेस होता है 2 या 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाता है. इसको हम एनर्जी के लिए
वर्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इन दिस सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है एंड प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए इस सिस्टम को लैक्टिक एसिड सिस्टम के नाम पे बुलाया जाता है। Lactic acid is produced as an end product. That's why this system is also called as lactic acid system. Is it clear? I'm not going detail about structure of glucose, how it will break down. But इतना समझ होना important है आपके लिए। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ये एक स्टेप में नहीं होता है। ये क्रिएटिन फॉस्फेट स्टेप बहुत ही सिंपल है, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 10 रिएक्शंस होने के बाद ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के रूप में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ग्लूकोज लैक्टेट के रूप में कन्वर्ट होने के लिए 10 रिएक्शंस होना पड़ता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मतलब एटीपी-सीपी सिस्टम से कंपेयर किया तो ये थोड़ा स्लो सिस्टम है। दिस इज द सेकंड फास्टेस्ट एनर्जी सिस्टम। वेरी फास्ट एनर्जी सिस्टम इज, रैपिड एनर्जी सिस्टम इज एटीपी-सीपी सिस्टम। उसके बाद आता है lactic acid energy system. So what is the advantage of this system? This is the second fastest energy system. It can support ATP production for up to 2 minutes. It can produce ATP production up to 2 minutes. Okay. One molecule of glucose या glycogen use होने के बाद 2 या 3 ATP बन सकता है इसमें। फास्ट वर्जन सिस्टम में कितना एटीपी बनता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ सीपी से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, लेकिन यहाँ एक ग्लूकोज यूज होने से 2 एटीपी बन सकता है, राइट? अगर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन से आ रहा है तो 3 एटीपी बनता है। तो एटीपी प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा है इस सिस्टम में कंपैरेटिवली, राइट? और ये एटीपी प्रोडक्शन को 2 मिनट तक मेंटेन कर पाता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स तक ये सस्टेन कर पाता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? सेम डिसएडवांटेज एक है, वो है लिमिटेड स्टोरेज। हमारा बॉडी में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी लिमिटेड है, सिर्फ फुल बॉडी में 500 ग्राम स्टोर्ड है। तो अगर ये 500 ग्राम खत्म हो गया तो एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है। Are you people getting? कोई डाउट है इसमें? सेकेंड डिसएडवांटेज ये है इस सिस्टम का, इसमें लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से फैटिग हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज लिमिटेड है, इसकी वजह से ज्यादा देर तक हम इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, हाई इंटेंसिटी में जब इस सिस्टम यूज होगा तो लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, एंड व्हेन लैक्टिक एसिड लेवल्स आर टू हाई that can lead to fatigue. And the third energy system is aerobic energy system. Name itself indicates it requires oxygen. This system requires oxygen. बिना ऑक्सीजन ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, what are the fuels for this system? What it can use as fuel? This system can use glucose or glycogen, fats and protein as fuel. ये सिस्टम जो है एरोबिक सिस्टम, ये प्रोटीन से भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है, फैट से भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है, और ग्लाइकोजन से भी एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है। सो इट हैज मोर फ्यूल्स। ओके, इस सिस्टम के द्वारा ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, वो है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी
मस्ट है। ऑक्सीजन है तो ये तीनों फ्यूल के रूप में यूज होगा और ज्यादा एटीपी को बनाएगा। फाइन। तो कौन सा इवेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है? कोई भी इवेंट जो 3 मिनट से ज्यादा होता है टाइम ड्यूरेशन, उन इवेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी इवेंट हम लो इंटेंसिटी में शुरू करते हैं तो उन इवेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी सिस्टम है। बाकी दोनों एनर्जी सिस्टम से कंपेयर किया तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस होने के बाद एटीपी बन जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, शाहिल। ओके, adenosine triphosphate. Anyways, I'll be sharing the notes, don't worry about that. So if you see the reactions, बहुत ही complicated होता है, ये simplified reaction है. Okay, so what are the fuels for this energy system? It can use proteins also, it can use carbohydrates also, it can use lipids also. But glucose glycolysis होने के बाद pyruvate मिलेगा और पायरुवेट असिटाइल कोई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और टीसीए साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। सो ये सब बहुत कुछ रिएक्शंस होने के बाद एटीपी बनता है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू फास्फर्जन सिस्टम एंड लैक्टिक एसिड सिस्टम। ये थोड़ा स्लो है, इस सिस्टम को एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए तो आप वार्म अप करते हैं ना, वार्म अप के टाइम पे क्या होता है, आपका एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस होना चाहिए होता है इसमें, तो थोड़ा स्लो है। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, इसको चलाने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, ऑक्सीजन इज कंपल्सरी एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग हाई इंटेंस एक्टिविटीज। ओके, और थोड़ा स्लो भी है। एडवांटेजेस क्या है इसका, एरोबिक एनर्जी सिस्टम का? इट इज वेरी एफिशिएंट, ज्यादा मात्रा में एटीपी को प्रोड्यूस कर पाता है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनता है? सेकेंड लैक्टिक एसिड सिस्टम में 2 या 3, राइट। लेकिन सेम ग्लूकोज से इस एनर्जी सिस्टम के द्वारा हम 32 एटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस 32 एटीपी in aerobic energy system, sorry. In aerobic energy system, we can produce 32 molecules of ATP from one glucose. That is the power of oxygen. एरोबिक एनर्जी सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन है तो सेम ग्लूकोज से आप ज्यादा एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सेम ग्लूकोज जाएगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में और बनाएगा 2 या 3 एटीपी, क्योंकि काम चलाने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। व्हेन यू आर इन एनारोबिक सिचुएशन, काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ एटीपी थ्रू एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। वो है डिफरेंस, पता चले अभी? इज इट क्लियर? और इस सिस्टम में देयर इज नो फैटिगेबल एंड प्रोडक्ट। एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन यहाँ लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, तो देयर इज नो फैटिगेबल एंड प्रोडक्ट। क्लियर? तो आप कौन सा एनर्जी सिस्टम को यूज करने वाला है आपका एक्टिविटी के लिए, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स में। एक है इंटेंसिटी, सेकेंड है ड्यूरेशन एंड थर्ड इज योर जेनेटिक क्वालिटीज। ओके, सपोज अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी बनता है कौन सा एनर्जी सिस्टम से? हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज के दौरान मैक्सिमम एनर्जी बनता है कौन सा एनर्जी सिस्टम से?
I want to see in the chat box. या हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन में एनारोबिक एनर्जी सिस्टम से बनता है. अगर आपका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ड्यूरेशन बहुत कम है, तो मैक्सिमम एनर्जी बनता है फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम से, यानी कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम से और लैक्टिक एसिड सिस्टम से. इफ योर ड्यूरेशन इज मोर, इंटेंसिटी इज लेस, तो कौन सा एनर्जी सिस्टम से बनता है? एरोबिक एनर्जी सिस्टम से. ओके, या सो मोर इंटेंसिटी मीन्स योर बॉडी विल डिपेंड ऑन एनारोबिक एनर्जी सिस्टम. इंटेंसिटी कम है मतलब योर बॉडी विल डिपेंड ऑन एरोबिक एनर्जी सिस्टम. ड्यूरेशन ज्यादा है तो एरोबिक एनर्जी सिस्टम, ड्यूरेशन कम है तो मोस्टली एनारोबिक एनर्जी सिस्टम. ओके, सपोज व्हाट इज जेनेटिक फ्यूचर्स? तो हर एक का जेनेटिक फ्यूचर्स अलग अलग होता है. कुछ लोगों में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा रहता है, कुछ लोगों में फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा रहता है. डू यू नो अबाउट स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स? ये क्या होता है? किसी को पता है? ओके, रीड अबाउट दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स मतलब अलग अलग फाइबर्स होता है मसल्स में. कुछ लोगों में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा रहता है. स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहता है. ओके, तो मैक्सिमम एनर्जी एरोबिक मैकेनिज्म से बनता है उनमें. इफ यू हैव फास्ट ट्विच फाइबर्स, they'll have more of glycogen storage. Okay, so maximum energy बनता है anaerobic से. So fiber की ऊपर भी डिपेंड करता है. If you have more of slow twitch fibers, you will be depending more on aerobic energy system. If you are having more of fast twitch fibers, you will be depending more on anaerobic energy systems. और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमारा बॉडी में कभी भी इंडिविजुअली काम नहीं करता है एनर्जी सिस्टम्स. ऑलवेज एनर्जी सिस्टम्स वर्क टुगेदर. सपोज इफ यू आर डूइंग स्प्रिंटिंग, 100 मीटर स्प्रिंटिंग, मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है कौन सा एनर्जी सिस्टम से? एटीपीसीपी सिस्टम, राइट. लेकिन थोड़ा सा एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम से भी बन रहा है, राइट. तो मैक्सिमम एनर्जी बनेगा एटीपीसीपी से, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन लैक्टिक एसिड से भी होता है और एरोबिक एनर्जी सिस्टम से भी होता है. सपोज यू आर डूइंग मैराथन, मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है एरोबिक एनर्जी सिस्टम से, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम से भी हो रहा है और ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम से भी हो रहा है, राइट. Google it about the slow twitch and fast twitch fibers, Pankaj. And that depends upon your body type. Akanksha, which type of fiber you have, that depends upon body type. Only when we do biopsy, we will get to know. Okay. That is, you are deviating from the topic. Aaj ka topic hai energy systems. Okay. Try to concentrate on that. You try to get the knowledge about fibers also. Fine. So are you clear about this point? So हमेशा तीनों एनर्जी सिस्टम मिलकर काम करता है. फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस ग्राफ, व्हेन यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए मैक्सिमम एनर्जी बन रहा है एटीपीसीपी एनर्जी सिस्टम से. ओके, मैक्सिमम एटीपी को प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम कौन सा है? फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए एटीपीसीपी सिस्टम. लेकिन थोड़ा सा एटीपी लैक्टिक एसिड सिस्टम से भी बन रहा है, राइट. Then after 10 seconds, maximum energy production हो रहा है anaerobic glycolytic system से, लेकिन some amount of energy is also being produced from aerobic energy system. So हमेशा percentages अलग अलग होता है, लेकिन तीनों energy systems काम करता है. Okay, screen visible नहीं है क्या काजल? Can you see now?
How many of you can see the screen? Yeah, fine. Only we have 1 or 2 slides. I'm almost done. Okay. So you can see this graph where it shows which energy system is used during which activity. Okay. So if you are doing 100-meter sprint, 100-meter sprint की time कितना होता है? Duration? Time duration कितना होता है? Around 11 seconds, 10 seconds. It depends upon the person. So maximum energy production is from which energy system? ATPCP system, right? ATPCP. So if you are doing 200-meter sprint, where the time duration is approximately 20 to 24 seconds. Okay. So half of the energy comes from ATPCP and remaining half is from anaerobic glycolytic system. As your distance increases, you are depending more on aerobic energy system. As the distance increases, as intensity decreases. यहाँ क्या हो रहा है? Duration ज़्यादा हो रहा है और intensity कम होते जा रहा है. So as the duration increases, intensity decreases, you will be depending on aerobic energy system. Okay. Is it clear? This slide shows, percentage of energy contribution from 3 energy systems during different activities. If you are doing running, 70% energy is from aerobic, 20% or 30% from anaerobic. Is it clear? Any doubt? Yeah, shooting mostly aerobic ही होता है. Okay. That's good. If you have any doubt, you can mail me on this email ID. Okay. ushakaniganti@gmail.com. I'll be sharing the notes with Neha madam. She'll be circulating with you in your groups. Fine. Any doubts? If you have any doubt, you can ask me now, or you can ask during the discussion class. Afternoon would be discussion class. Sandeep sir will be taking the discussion class. You can ask during discussion also. Fine. Thank you so much for your patience. If you have no doubt, I'll end the session. Thank you all. Recording